Now, superposition theorem, network theorems, you can call them network theorems. And the first theorem here we are going to take is what? Superposition theorem. Before going to discuss more about the superposition theorem in electronics, I would like to pause here and want to know that what do you mean by the superposition? आप सुपरपोजिशन से, इसे हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण की प्रमेय। आप अध्यारोपण से क्या समझते हैं और अभी तक आपने अध्यारोपण कहां कहां देखा है? At which different points you have seen this superposition in physics? So just want to pause here. Or when you can use this superposition or apply this superposition. So superposition in physics, this is a beautiful concept in physics. Wherever the linearity in the physics, you can apply this superposition theorem, right? So you have seen the different examples of the superposition in the different physical subjects. In mathematical physics, you have deal with the linear differential equations, right? And the solutions of the linear differential equation have an important property that the linear superposition of the different solutions is also a valid and acceptable solution of that linear differential equation. That is what? Superposition. Why superposition in that equation? Because they are linear differential equations. There is no term of y star, there is no term of y square, there is no term of y star square. So I can write here linear system. And what kind of the linearity we are going to take right now, right? Linear systems obey superposition, right? The first example 1, linear differential equation. And फर्स्ट ऑर्डर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे LDE कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक एग्जांपल कैसा लिखते हैं इसको? दैट इज dy by dx प्लस pxy इक्वल टू qx। ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है। ये फर्स्ट ऑर्डर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी कई काइंड हो सकते हैं, यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई भी हो सकता है, तब भी ये लीनियर ही कहलाएगी। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कहीं भी वाई स्क्वायर में नहीं आ रहा। आपका जो वेरिएबल है वाई, यहाँ पर उस वाई का कोई भी टर्म वाई स्टार नहीं है। नो टर्म ऑफ वाई स्टार, वाई स्क्वायर, वाई स्टार स्क्वायर और एक्सेट्रा। सो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ y1 and y2 is the solution of the equation, then implies that a1 y1 plus a2 y2, आप यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू a1 y1 plus a2 y2 is also a acceptable solution। तो ये क्या है? a1 y1 plus a2 y2, superposition of these two free solutions, and this y, the superposition of these two solutions is also the solution of that linear differential equation. That is what superposition. Why? Because this equation is what? Linear in y. Second example देखते हैं, optics and waves। Example 2,
ऑप्टिक्स एंड वेव्स में आपने क्या देखा, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहां भी देखा, और क्या देखा, कैसे लिखा इसको, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन. एंड व्हाट इज दिस, y is what, displacement of any point in the space. If two or more than two waves are superimposing on any point in the space, then the resultant displacement at that point is what, the superposition of all the displacements. Okay, तो superposition का यहाँ पर मतलब क्या है कि आप भूल जाओ कि n वेव है, आप यहाँ पर मान लीजिए कि 3 वेव्स हैं, राइट. तो आप पहली वेव का डिस्टर्बेंस देखो वहां पर, और उसकी वजह से कितना y आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है. फिर फर्स्ट एंड थर्ड को भूल जाओ, सेकंड का कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको देखो. फिर फर्स्ट एंड सेकंड को भूलकर, उनकी वजह से डिस्टर्बेंस को छोड़कर, और थर्ड का डिस्टर्बेंस देखो, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिस्टर्बेंसेस, और फिर उनको क्या करो, वेक्टरली ऐड कर दो. तो जो नेट डिस्टर्बेंस है y, वही क्या है, वहां पर सुपरपोजिशन की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है. सो दिस इज व्हाट सुपरपोजिशन इन ऑप्टिक्स एंड वेव्स. The third definition, or third, is here in electronics or electric circuits. क्या है, क्यों है ये, क्यों लगेगा यहां पर, अभी इसको यहां देखेंगे. ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ, both are linear in I and V. किरचॉफ लॉ और जो ओम्स लॉ है, वो दोनों ही क्या है, I और V में क्या है, लीनियरिटी फॉलो करते हैं. इसलिए आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यहाँ पर सुपरपोजिशन जो है वो देख सकते हैं. तो यहाँ अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है या सुपरपोजिशन थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट क्या है. तो ये तो आप देखा कि डिफरेंट जगह पर जो सुपरपोजिशन है उसका फिजिकल मीनिंग सेम है, अलग अलग नहीं है. जो सुपरपोजिशन आप यहां पर अभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में डील करेंगे, वही सुपरपोजिशन आप वेव्स में डील करते हैं, वही सुपरपोजिशन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए डील करते हैं. तो फिजिक्स इज नॉट डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ब्रांचेस बाय द बेसिक लॉज. द बेसिक लॉज आर सेम. सो द फर्स्ट थ्योरम इज व्हाट, सुपरपोजिशन थ्योरम. हिंदी में बोलते हैं इसको अध्यारोपण की प्रमेय. ओके, इफ टू और मोर पावर सोर्सेज आर कनेक्टेड in a network of linear impedances. देखो मैंने क्या कर लिया यहां पर, लीनियर इम्पीडेंसेस काम में लिया है. ये याद रखना है आपको, सुपरपोजिशन थ्योरम जब भी अप्लाई करते हैं तब आप किसकी बात करते हैं, इसको आप अंडरलाइन करके और इसमें लिख लें लीनियर इम्पीडेंसेस के लिए, क्योंकि ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द लीनियर कंपोनेंट्स. एंड व्हाट आर द लीनियर कंपोनेंट्स, कल हमने देखा जैसे कि इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, दे ऑल आर व्हाट, लीनियर कंपोनेंट्स. बट ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो आप डायोड के लिए, इनके लिए नहीं लगा सकते डायरेक्ट. Then the current flowing through any element at any point is equal to the sum of all the currents due to each
source when, एक यहां पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि कब, when other sources are replaced by their internal impedances, राइट. सो दिस इज द थ्योरम. ये थ्योरम क्या कहती है, एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते हैं. इफ टू और मोर पावर सोर्सेज, in last class we have told, I talked about this, that these theorems, network theorems, are used to simplify the complex network, right. तो यहाँ पर क्या है कि खूब सारे पावर सोर्सेज यदि लगे हों सोर्स के उस सर्किट के अंदर, तब आप क्या कर सकते हैं, और वो पावर सोर्सेज और इसमें जो इम्पिडेंसेज है वो सब क्या है, लीनियर है. ये एक अनिवार्य शर्त है. देन द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी एलिमेंट, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है at any point is equal to the sum of all the currents due to each source when other sources are replaced by their internal impedances. Means you can see the effect of individual sources by replacing the other sources with their internal impedances. First do it for the first source and forget about the all other sources and replace them by their internal impedances. If they are current sources, then the internal impedance of the current source is what? Infinite. Means make them open. If they are voltage sources, then the internal impedance of the voltage source is what? Zero. So make them short circuit. So this is the way to deal with it, right? So यहाँ कुछ नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके लिए. नोट फर्स्ट, until unless or otherwise stated use the ideal sources. यदि आपको नहीं कहा है कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो ये है, तब तक आपको उन सोर्सेज को कैसा डील करना है, आइडियल डील करना है. We should take power sources as ideal. ठीक है. और वो अभी जो बात की हमने, if voltage sources, for voltage source internal impedance is what? Zero. And zero means replace that source with the internal impedance, और internal impedance ideal source के लिए क्या लेंगे हम? Zero for ideal voltage source, right? It means that we should short circuit the voltage source. जिस वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं, इसके अलावा रेस्ट जितने भी डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज और लगे हैं, उन सबको क्या करना है, यदि आइडियल सोर्स माना है तो उनको शॉर्ट सर्किट कर देना है और पहले सोर्स का आपको इफेक्ट देखना है. इस तरीके से we should short circuit the voltage source for see the effect of any one source. Okay, the second ऊपर लिख लेते हैं, थर्ड वाला पॉइंट. For current source,
internal impedance for ideal current source. Again, R is what? Infinite. So आपने कहा अभी थ्योरम में कि बाकी जो सोर्सेज हैं उनको क्या करेंगे, इंटरनल इंपिडेंस से रिप्लेस करेंगे. तो यदि कोई करंट सोर्स है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसको इंटरनल इंपिडेंस इनफाइनाइट मतलब क्या कर देंगे, उसको ओपन छोड़ देंगे, ओपन सर्किट की तरह से रखेंगे उसको. दैट मीन्स दैट वी शुड make that source, make other current sources is open circuit to see the effect of. So मैं ये बोल रहा था कि कल हमने सुपरपोजिशन थ्योरम देखा और सुपरपोजिशन में हमने ये देखा कि किस तरीके से जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको जो है हम इफेक्ट जो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपोनेंट में देखना है तो उसको देख सकते हैं. ठीक है, एक नोट हम सुपरपोजिशन पर लगा सकते हैं. कल हमने सुपरपोजिशन को बहुत डिटेल में स्टडी किया और एक इंपॉर्टेंट नोट हमने ये देखा कि दिस थ्योरम इज ओनली यूजफुल फॉर द लीनियर इम्पिडेंसेस और फॉर द लीनियर सर्किट्स. राइट, तो यदि मैं पावर कैलकुलेशन करना चाहूँ इस सुपरपोजिशन थ्योरम से, so is it a valid result or it is a good to calculate power with using the superposition theorem? Not at all. My answer is capital no, because power is what? I square R, or you can write it V square by R. So there is no linearity in power and V and I. So we cannot use the superposition theorem there. So we should just start this class by writing a note just after the superposition theorem that since power P is what? I square R or V square by R. Since V बराबर I. ओके, आप इसको कैपिटल लिख रहे हैं, मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ. तो यहां देखिए आप, नो लीनियरिटी इन I और V. तो हम यहां लिख सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम do not work for power calculations. Right?